today's session Mr. Umar Iqbal, Manager Operation Excellence, Sapphire Retail Limited, Mr. Muhammad Azim Naz, Director UMT Quaid-e-Azam Campus Lahore, Ms. Kinza Ashraf, Faculty Member UMT Quaid-e-Azam Campus Lahore, and my dear students. I, Muhammad Bilal Ashraf, Assistant Manager Career Services, welcomes you all in today's sessions on significance of soft skills in career by Mr. Umar Iqbal, Manager Operation Excellence, Sapphire Retail Limited. Before inviting our worthy guest speaker on the dais, I would like to introduce his good self briefly. Mr. Umar Iqbal has a diversified experience in most progressive organizations like Sapphire Retail Limited, Finca Microfinance Bank Limited, Stylo Group, and Kashf Foundation. His areas of expertise include training and facilitation, organization development, developing retail business operations, competency mapping, succession planning, and people development planning. Mr. Umar Iqbal has an experience to set up training and development department of Sapphire Retail Limited. He developed SOPs for retail operations, programs to lead towards retail excellence, training need analysis for all levels, training strategies to meet organization strategic objectives, and training budgets. As I've already told you that Mr. Umar Iqbal has already worked in Finca Microfinance Bank Limited. Over there, he developed effective training mechanism, made competency mapping to double the number of business centers. Mr. Umar Iqbal served as a team leader, training and development in Stylo Group, which has more than 100 outlets and made a proper mechanism of training for the whole organization. He has also worked in the training and development department of Kashf Foundation and empowered the personnel conducting training on soft skills. Now I would like to invite Mr. Umar Iqbal, Manager of Operation Excellence, Sapphire Retail Limited, to conduct a valuable interactive session on significance of soft skills with our students. Dear students, welcome him with a huge round of applause. Sapphire basically organization है, more than 40 organizations basically एक group of companies है, जिस पूरे group of companies में एक छोटी सी उसकी कंपनी, उसका पार्ट जो है वो Sapphire Retail Limited भी है. Sapphire Retail Limited पाकिस्तान का इस टाइम रिटेल, फैशन रिटेल का सबसे ज्यादा एक वेल नोन और लव्ड ब्रांड समझा जाता है. तो Sapphire Retail, Sapphire ग्रुप का एक पार्ट है Sapphire Retail, जिन स्टोर्स की अभी आप बात कर रहे हैं, ठीक है, इन स्टोर्स के ऑपरेशंस, फैशन रिटेल बेसिकली हम जो है वो मेन सीजनल फैब्रिक जो है वो सेल करते हैं. ठीक है, आज मैं जो आपके साथ बेसिकली शेयर करूंगा ना, वो करूंगा कुछ एक्सपोजर सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड. सॉफ्ट स्किल्स का नाम सुना है कभी किसी ने? अच्छा चलें, कोई बात नहीं. 3 मेन एजेंडाज होंगे आज जो हम गपशप लगाएंगे उसके 3 मेन एजेंडाज होंगे. सबसे पहली चीज होगी, पहला हमारा आज का एजेंडा, हम 3 चीजों पे बात करेंगे कि सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स की बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है. नंबर 1, ओके, ठीक है. सैफायर को थोड़ी देर के लिए माइंड से निकाल लिया, ठीक है, सही है. दूसरा जो होगा वो होगा जो मेन कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, सॉफ्ट स्किल्स की सिग्निफिकेंस क्या है आपकी अपनी लाइफ में. ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स की सिग्निफिकेंस आपके करियर में तो है ही है, मतलब, लेकिन आपकी लाइफ में ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या है. ठीक है जी. दूसरा होगा, ये कुछ नजर आ रहा है, कुछ बात बन रही है. अच्छा, तीसरी चीज हमारी एक और चीज होगी. क्या इसके बाद क्या जरूरी होगा वैसे आपके ख्याल में? आप अगर हमें यह पता चल जाए कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं, वो डिफरेंस उसमें क्या होता है, उसके बाद हमें यह पता चल जाए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर क्या और जानने की जरूरत पड़ सकती है? वेरी नाइस, वेरी नाइस. कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है. ठीक है, यही है. अच्छा ठीक है, ठीक है. इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है या कैसे डेवलप करना है. ठीक है जी, कैसे इंप्लीमेंट करना है या कैसे डेवलप करना है, यही है. ठीक है. अच्छा, हम इसको ना थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखने की कोशिश करेंगे.
ऑल दो हमारे पास टाइम कम है तो बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव नहीं हो सकेगा, लेकिन कुछ ना कुछ इंटरैक्टिव रखने की कोशिश करेंगे। आज हम कुछ यहां से स्टार्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्स वो होंगे जो कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे अपने जो क्वेश्चंस अगर मैं पूछूंगा तो उन क्वेश्चंस के आंसर दे रहे होंगे, ठीक है। एक्टिवली जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, ठीक है, उनका हम यहां पे जो है ना नाम लिख देंगे, ठीक है। यहां पे सामने नाम लिखेंगे कि जी ये हमारा आज का 1 स्टार हो गया, ये हमारा 1 स्टार हो गया, ठीक है, ठीक है, डन। आपका नाम क्या है? और हम इसको लिखेंगे, किस कलर से लिखें, रेड से लिख दें या? सही है जी, ये स्टार बना दिया आपके साथ पहले। SAMAN, ठीक है, थैंक यू फॉर करेक्शन, थैंक यू। अच्छा जी, सही है जी। तो ये हमारा आज का एजेंडा रहेगा। पहली बात, पहली चीज को हम स्टार्ट करते हैं। सॉफ्ट स्किल्स का नाम सुना है कभी किसी ने? किसी ने सुना हो? स्टार मिल सकता है वैसे उसको। अब जबरदस्ती भी नहीं है कि किसी ने हाथ जबरदस्ती खड़ा करने स्टार लेने के लिए। किसी ने कभी सॉफ्ट स्किल्स का नाम सुना है? किसी ने कभी टेक्निकल स्किल्स का नाम सुना है? अच्छा, कितने लोगों ने टेक्निकल स्किल्स का नाम सुना हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोगों ने। अच्छा, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डिग्री क्या ले रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? आईटी। इधर से जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, आईटी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा, तो बेसिकली टेक्निकल लोगों ने, टेक्निकल स्किल्स वाले लोगों ने टेक्निकल स्किल का नाम सुना हुआ है, ठीक है। अब इसको हम जरा देखते हैं कि टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली होती क्या है। टेक्निकल स्किल्स क्या होती हैं? कोई बताएगा टेक्निकल स्किल्स क्या होती हैं? कैसी एबिलिटीज, कौन सी एबिलिटीज को टेक्निकल स्किल्स कह सकते हैं हम? ओके, ग्राफिक डिजाइनिंग, बिल्कुल सही है जी। ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है, किस चीज को बेसिकली हमने ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों टेक्निकल स्किल है, ठीक है, सही है। अच्छा, 2 चीजें होती हैं, आपके सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आपकी आई है और कुछ और मैं अपनी एडिशन करूंगा। 2 बेसिकली जो स्किल्स होती हैं ओवरऑल पूरी की पूरी कंपिटेंसीज को अगर हम देखते हैं, उसमें जो स्किल्स वाला पार्ट है वो 2 स्किल्स होती हैं। एक स्किल को बोलते हैं सॉफ्ट स्किल्स, एक स्किल्स होती हैं टेक्निकल स्किल्स बोलते हैं, या हार्ड स्किल्स भी बोलते हैं उसको। हार्ड स्किल्स भी बोलते हैं, टेक्निकल स्किल्स भी बोलते हैं। हार्ड स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जो हार्ड कोर काम करने से रिलेटेड स्किल्स होती हैं, जो टेंजिबल तरीके से नजर आ सकती हैं, जिसके लिए आप एक प्रॉपर तरीके से क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, जिसके थ्रू आपने कहीं पे भी अपने करियर को स्टार्ट करना है। आप बताएंगे कि जी मेरा आईटी में मैं एक्सपर्ट हूं, फलां चीज में, ये मेरे पास टेक्निकल स्किल है, यानी कि जो काम करने की सलाहियत है, काम करने की सलाहियत, जो हार्डकोर काम करने की सलाहियत है, उसको टेक्निकल स्किल्स बोलते हैं। हां, कुछ बात बन रही है या नहीं बन रही? जिस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे हार्ड स्किल्स में आपके हैं टाइपिंग करना, ये हार्ड कोर स्किल है जो डिलीवर होती है, नजर आती है सामने, बिल्कुल पता चलता है। हां, ठीक है, टाइपिंग करना, गाड़ी ड्राइव करना आना, ये टेक्निकल स्किल है, ठीक है। आईटी की अगर आप बताते हैं, आईटी का कोई भी आईटी की कोई चीज खराब हो गई है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको सही करना, ये एक आईटी की टेक्निकल स्किल है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? टेक्निकल। अच्छा, एक सॉफ्ट स्किल्स होती है, इसको ये टेक्निकल स्किल्स भी हैं, ये इनको हार्ड स्किल्स भी बोलते हैं, ठीक है। एक स्किल होती है सॉफ्ट स्किल्स, वो स्किल्स
जो आपको टेंजिबली नजर नहीं आ रही, लेकिन वो आपके इंटरनली हैं, जो आपके टेक्निकल स्किल्स को सपोर्ट करके कुछ भी रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही होती हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये सॉफ्ट स्किल्स हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स वो स्किल्स जो आपको टेंजिबली नजर नहीं आ रही, लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं, वो टेक्निकल स्किल्स को सपोर्ट करती हैं कोई भी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने में। क्लियर हुई बात? यहां तक पक्की बात है? अब इधर वाले लोगों से हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं टेक्निकल स्किल्स की, इधर वाले लोगों से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं सॉफ्ट स्किल्स की। सोचें जरा, दिमाग लड़ाएं। कौन सबसे पहले बताएगा? हाथ खड़ा करें। इधर वाले या इधर वाले? कोई नहीं हाथ। एक मिनट जी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इधर से आना शुरू हो गए हैं, सॉफ्ट स्किल्स फंसी हुई है कहीं पे। मार्केटिंग, अच्छा, एटीट्यूड में कुछ चीजें आती हैं, कॉन्फिडेंस, अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये एग्जैक्टली कम्युनिकेशन स्किल, ये एग्जैक्ट सॉफ्ट स्किल। कॉन्फिडेंस, ठीक है, सही है, ठीक है। हाँ, ये जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं वो पर्सनैलिटी ट्रेट से ड्राइव होती हैं, आपके पर्सनैलिटी ट्रेट से ड्राइव होती हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मार्केटिंग, हाँ, मार्केटिंग को अगर हम एक्सप्लोर करेंगे, क्या मार्केटिंग का क्या पार्ट टेक्निकल में आता है, क्या पार्ट उसका सॉफ्ट में आता है, वो दोनों चीजें हो सकती हैं। ये कुछ पार्ट इसका आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कौन सी एबिलिटीज? एक मिनट जी। डेटा एनालिसिस, वेरी नाइस। थिंकिंग, क्या थिंकिंग? कौन सी थिंकिंग? कौन सी थिंकिंग? कुछ भी सोचना। सोशल इंटेलिजेंस किसने कहा है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। बॉडी लैंग्वेज, अच्छा, बिल्कुल सही जी। देखा, जिधर को मैं जाता हूं उधर से आवाज ज्यादा आनी शुरू हो रही है, उन्हें लग रहा है कि अब मैं उनकी बात नहीं सुन रहा, आपकी बात सुन। वेरी नाइस जी। तो जी जरा हो गया। अब मैं एक काम करते हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं जी दो चीजें, मैं आपको बोलूंगा, आपने बताना है। ये है जी हमारा सॉफ्ट स्किल्स, और ये हमारी है जी हार्ड स्किल्स या टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से स्किल्स बोलता रहूंगा, आपने मुझे बताना है कि ये मैं कहां पेस्ट करूं। जल्दी जल्दी, हमारे पास टाइम कम है। ठीक है, सबसे पहली अगर मैं कहता हूं कि जी मेकिंग इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट बनाना, हार्ड स्किल्स, ये ले जी यहां पे लग गया। दूसरा है टाइपिंग करना। तीसरा है जी आगे रिलेशनशिप बिल्डिंग, सॉफ्ट स्किल्स, अच्छा, वेरी नाइस। आगे है जी कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स। आगे चलते हैं जी प्रोग्रामिंग करना, प्रोग्रामिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस, इंप्रेसिव। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, कोई सॉफ्टवेयर चलाना, हार्ड स्किल। ठीक है जी। आगे है जी यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, हार्ड स्किल, वेरी नाइस, इंप्रेसिव। एम्पैथिक लिसनिंग, सॉफ्ट स्किल्स। आगे चलते हैं जी फ्लेक्सिबिलिटी, आगे चलते हैं जी सिचुएशन हैंडलिंग, आगे चलते हैं जी मेकिंग बिजनेस फिजिबिलिटीज, हाँ, हार्ड स्किल्स, वेरी नाइस, वेरी नाइस। रिपोर्ट राइटिंग, हार्ड स्किल्स। सही है जी। ओके, जॉब नॉलेज होना, जॉब का नॉलेज, जो काम करें वो, अच्छा, इसको मैं दरमियान में रख रहा हूं, इसको अभी डिसाइड करते हैं कि किधर जाना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग, सॉफ्ट स्किल्स, वेरी नाइस यार, सारी डिसीजन मेकिंग, सॉरी, ठीक है। डिजाइनिंग प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट कोई भी डिजाइन करना,
सही है जी। पीपल मैनेजमेंट, सॉफ्ट स्किल्स, आपने तो अडेप्टेबिलिटी, वेरी नाइस जी। क्रिएटिव थिंकिंग लास्ट, सॉफ्ट स्किल्स, सॉरी इधर नहीं, इधर लगाएं यार, वेरी नाइस। जल्दी समझ गए सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स के डिफरेंस। लास्ट रह गए, ये बता दें, जॉब नॉलेज। बेसिकली आपको जो काम करना है उसका नॉलेज होना, ठीक है। मैं जरा इसको एक्सप्लेन करता हूं, फिर आपने बताना है कि क्या है। सपोज के आईटी की कोई चीज खराब हो गई है, आपका आईटी का काम है, जॉब आपको जब रखा जाता है जॉब के लिए, कहा जाता है ना कि बताया जाता है कि जी आपने आईटी की ये चीजें मैनेज करनी है, आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, आपने रिकंसिलिएशन करनी है और ब्ला ब्ला ये चीजें करनी है, ये जॉब नॉलेज है। यही है, ठीक है। ये अब किस में आएगा? हार्ड स्किल्स में आएगा। क्या करूं फिर? हार्ड स्किल्स में डालते हैं, ठीक है। आप सही कह रहे हैं, मैं इसको चेंज कर लेता हूं। हम इसको यही कहते हैं कि जी जॉब का स्किल्स होना, ठीक है, फिर हार्ड स्किल्स में। माय बैड, ठीक है, ओके। क्लियर हो गया? सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स क्या है? डन। नेक्स्ट चले आगे चलते हैं जी। क्या, किस चीज पे अब हमने बात करनी है? ये हो गया हमारा। चलो जी, अब हमारी बात आ गई कि इंपॉर्टेंस। अब मुझे बताएं, अगर आप में से जरूरत ही ना महसूस हुई कि किसी को इंपॉर्टेंट है या नहीं और डेवलप पहले कर ली, फिर आप कैसे दोबारा रिमूव करेंगे? सही है, अच्छा सही है। अच्छा, हम कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली एक सीक्वेंस को हमने थोड़ा सा फॉलो करना होगा, ठीक है, वो भी कर लेंगे। जो मिलीनियल्स होते हैं ना, मिलीनियल्स का पता है क्या होते हैं? मिलीनियल्स होते हैं 94 के बाद जो पैदा होने वाली कौम है, वो मिलीनियल्स हैं, ठीक है। वो ये बड़े इम्पेशेंस, इनमें बहुत ज्यादा इम्पेशेंस है। आज ही रिजल्ट मिल जाए, आज ही डेवलप हो जाए, ये जाने बगैर कि ये क्यों जरूरी है, आज ही मैं जंप लगा के जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लूं और आज ही रिजल्ट देना शुरू कर दूं। सही है, आराम से चलेंगे, करेंगे आराम से, ठीक है। अच्छा, सिग्निफिकेंस को देखते हैं, कि क्या सिग्निफिकेंस इसकी क्या है, आपके ख्याल में कोई अहमियत है? अच्छा, मुझे पहले एक और, इससे भी पहले एक क्वेश्चन करते हैं। आप में से कोई ऐसा शख्स है, ऐसा कोई स्टूडेंट है, सॉरी, जिसने अपनी लाइफ का कोई गोल बनाया हो कभी? कोई है जिंदगी का कोई गोल? वेरी नाइस। था, खत्म हो गया, अच्छा ठीक है, लेकिन बनाया आपने जिंदगी में कभी, ठीक है। कोई और साथी कभी कोई जिंदगी में कुछ सोचा कि मैंने कहां जाना है, क्या अचीव करना है, क्या करना है, कहां पे पहुंचना है? कभी जिंदगी में कोई गोल बनाया है? बनाया किसी ने? कभी गोल बनाया? हाथ खड़ा करें, कॉन्फिडेंस के साथ पूरा हाथ खड़ा करें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने भी ऊपर हाथ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग शर्मा के नहीं कर रहे कि इधर नजर भी आ जाए और पीछे मेरे क्लास फेलोज को भी ना नजर आए, क्योंकि बाद में उन्होंने पूछना, अच्छा ही क्या गोल बनाया सी, बड़े गोल बनाई फिर दे हैं? तो कुछ लोग इस तरह से कर रहे हैं कि जी बस थोड़ा सा पता चले और थोड़ा सा मतलब बाकियों का नाम ही पता चले। गोल, लोग बड़ी पढ़ी लिखी बातें करता है यार, मतलब यार गोल बनाए हुए इसने हैं। अच्छा, सही है, लेकिन जी गोल बनाना जिंदगी के लिए वो पढ़ी लिखी बात लगे, मजाक लगे, गोल्स के बगैर जिंदगी की ड्राइव नहीं मिलती। आपको पता नहीं है कि आप काम जो कर रहे हैं वो क्यों काम कर रहे हैं, ठीक है। तो गोल बनाना हमेशा एक अच्छी बात होती है। गोल आपने शायद बड़े, गोल का मतलब ये नहीं होता कि मैंने जो है वो जिंदगी में जो है वो बिल गेट्स बन जाना है, मतलब लाजमी नहीं है कि यही गोल हो। गोल छोटे छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। आपने फैमिली में किस तरह से रहना है, आपने रिलेशनशिप बिल्ड करना है और किस तरह से उसको मेंटेन करना है,
ठीक है, आपने किसी एक इंसान को डेवलप करना है, उसमें कोई कंट्रीब्यूशन डेवलप करना है, आपने इतना जीपीए लेना है, सीजीपी लेना है, ठीक है, ये सारे के गोल्स हैं, ठीक है, बड़े गोल्स भी हो सकते हैं जो आपको लाइफ का पर्पस देंगे, ठीक है, आपकी जिंदगी का पर्पस देंगे। लेकिन वेरी नाइस गोल्स तो कभी ना कभी सब लोगों ने बनाए होते हैं। कभी यही मैच खेलने जा रहे हैं तो सोचा होता है ना कि आज जो है ना इतना स्कोर बना के आना है, ठीक है, तो खैर बिल्कुल सही है जी। सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं कि ये गोल्स अचीव करने में सॉफ्ट स्किल्स किस तरह से काम करती हैं। अगर वो एग्जीक्यूट करना नहीं मुझे आता, उसको प्रेजेंट करना नहीं आता, तो मैं कहां पे अपने पास आखिरी जिंदगी के आखिरी टाइम पे अपनी किताब लिख के बस वो छोड़ के मर जाऊंगा, वो भी कोई पढ़ ले, नहीं पढ़े तो ना पढ़े, आखिर में ये भी लिखा होगा कि जी मेरे पास जितनी स्किल्स थी ना और किसी के पास स्किल्स नहीं थी। आखिरी सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ होगा, ऐसा कोई दुखिया के जो दिल पकड़ के बैठ जाए आखिरी पढ़ने वाले को कि जी बस, ठीक है। उसके लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको जरूरी है कि कुछ और स्किल्स हो। हार्ड कोर स्किल आपको सामने लाने के लिए सिर्फ, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन और उसको रिजल्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत है। इसकी एग्जांपल अगर देते हैं, आप क्रिकेट का कोई क्रिकेट देखते हैं? अच्छा, गुड। हमारे पास हमने कोई वर्ल्ड कप जीता है? कौन सा वर्ल्ड कप जीता है? वनडे वाला 92 में से, आप में से मेरे ख्याल से ज्यादा बच्चे उस टाइम तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, ठीक है, 92, अच्छा ठीक है, तो 92 का वर्ल्ड कप। लेकिन बात सुनिए आपने, 92 में कोई प्लेयर्स याद है उस टाइम? कौन से प्लेयर्स थे? कौन था? ओए, सबसे पहले आपने इमरान खान का नाम, जावेद मियांदाद और इंजमामुल हक, वसीम अकरम। बस 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 इतने से ही काम चल जाएगा, बस 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 इतने से ही काम चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, अब आप मुझे यह बताएं कि उसका कैप्टन कौन था? इमरान खान। अब मुझे यह बताएं कि इमरान, हार्ड स्किल्स क्रिकेट खेलने के लिए कितनी हार्ड स्किल्स चाहिए आपको, जो हार्ड कोर टेक्निकल स्किल्स हैं? तीन स्किल्स हैं। नंबर 1 क्या कहते हैं? बैटिंग। नंबर 2 फील्डिंग। नंबर 3 बॉलिंग। इसके अलावा तो नहीं ना कुछ और हार्ड कोर स्किल्स में? अब मुझे यह बताएं कि इमरान खान बेस्ट बॉलर था? उस टाइम का बेस्ट बॉलर कौन था? उस टाइम का बेस्ट बॉलर कौन था? वसीम अकरम। वसीम अकरम, मतलब उसने जो डिलीवरीज करवाई हैं, मतलब आज भी लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि वो डिलीवरीज कैसे करवाई हैं उस टूर्नामेंट में, ठीक है। सबसे अच्छा बॉलर कौन था? सबसे अच्छा बैट्समैन उस टाइम कौन था? इंजमामुल हक और जावेद मियांदाद, मतलब दोनों में। क्या इमरान खान सबसे अच्छा बैट्समैन था? देखें, हार्ड कोर स्किल्स में वो एक्सपर्ट तो नहीं था, उनमें ज्यादा एक्सपर्टीज किसी और की थी, लेकिन कैप्टन था। यस यस, अब समझ आ रही है कि ये क्या है? सॉफ्ट स्किल्स। हम सारी जिंदगी बात करते रहते हैं कि जी आज मैंने ये पढ़ना है, मेरा इतना अच्छा नॉलेज है, वो बंदा पता नहीं क्यों आगे निकल गया यार। मतलब ये जो बॉस है ना, ये बड़ी मेरे साथ ज्यादती करते हैं, ये जो टीचर है ना, ये बड़ी ज्यादती करते हैं, उनका फेवरेट वो है। मेरे पेरेंट्स बड़ी ज्यादती करते हैं, उनका तो फेवरेट ही वो है, हालांकि मुझे सबसे ज्यादा आता है। मैं उससे अच्छे प्रोजेक्ट बना सकता हूं, मैं उससे ज्यादा काम कर सकता हूं, मैं उससे ज्यादा जो है वो ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, ब्ला 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 ब्ला। हर वो चीज को कंपैरिजन कर रहे होंगे जो आपके पास अच्छी होगी और उसके पास वीक होगी। हर उस चीज को हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, जबकि ये कंपैरिजन गलत है। अपनी सबसे स्ट्रांग चीज का कंपैरिजन किसी की वीक चीज के साथ करना, ये कंपैरिजन ही फेयर कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके पास कुछ और ऐसी स्किल्स हैं, बिल्कुल, इंटरपर्सनल स्किल्स, मोटिवेशनल स्किल्स, लोगों को साथ लेके चलना, टीम बनाना, ट्रांसपेरेंसी रखना, मतलब
बहुत सारी, ये सारी की सारी सॉफ्ट स्किल्स हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल्स की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें, सॉफ्ट हार्ड स्किल आपको एंट्रेंस जरूर देती है कि जी मैंने पढ़ा हुआ है तो मैं यहां पे आ गया हूं। आगे जब आपने प्रोग्रेस करनी है तो वो सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं। डार्विन की थ्योरी का किसी ने सुना हुआ है वैसे? अच्छा, दो चीजें हैं, एक है जी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कौन सर्वाइव करता है डिफिकल्ट सूरत हाल में, जो सबसे ज्यादा फिटेस्ट है या एक मिनट या जो सबसे ज्यादा अडेप्टेबल है। हाँ, एक है फिटेस्ट जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, जो फिजिकली सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, जो स्किल्स इसके पास सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, एक वो है जो सबसे ज्यादा अडेप्टेबल है, सिचुएशन देख के जो सिचुएशन की नीड है उसके हिसाब से अडेप्ट होने की सलाहियत रखता है। वो दोनों में से सर्वाइव कौन करता है? दुनिया जब से बनी हुई है बहुत सारे एनिमल्स थे, ठीक है, उनमें से सबसे पुराना दुनिया में जो एनिमल है वो एनिमल में से एक एनिमल कहते हैं कि जी डायनासोर तो है ही नहीं, कहां पे भाई, वो फिल्म है, असली बात नहीं है, वो फिल्म ही है। अच्छा, जो लेकिन उसी की जनरेशन में से एक है क्रोकोडाइल, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकता है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तो होंगे ना, डायनासोर भी होगा और भी बहुत, लेकिन अडेप्टेबल कौन था? किसने अडेप्ट किया है? कौन सरवाइव किया है? ठीक है, तो ये है गेम टेक्निकल स्किल की और सॉफ्ट स्किल्स की। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्निकल स्किल्स बिल्कुल ही काम की नहीं है, ठीक है, टेक्निकल स्किल ने रिजल्ट देने हैं, सॉरी उसने करना है, लेकिन उसके साथ मिलकर सॉफ्ट स्किल ने रिजल्ट प्रोड्यूस करवाने हैं, ठीक है, क्लियर। एक अभी छोटी सी जो है वो, हमारे पास टाइम सर कितना है? ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जल्दी से एक अब आपको जरा कॉर्पोरेट पे लेके चलता हूं, ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स की हम अगर बात करते हैं, जरा कॉर्पोरेट की तरफ को जाते हैं। 3 लेवल होते हैं बेसिकली मैनेजमेंट के, सिंपल 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 रखें तो 3 बेसिकली लेवल हम उसको 3 में डिवाइड करते हैं। हार्वर्ड की एक केस स्टडी है, हार्वर्ड ने एक स्टडी की थी, उसकी बेस पे मैं आपको जरा, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने, उसकी बेस पे आपको जरा बताता हूं। सबसे पहली चीज है, एक बॉक्स बनाते हैं, इस पे है जी फर्स्ट टाइम मैनेजर्स, फर्स्ट टाइम मैनेजर्स, ठीक है। दूसरे होते हैं मिडिल मैनेजमेंट, मिड लेवल, ठीक हो गया, यस। और एक है, इसको बोलते हैं एग्जेक्टिव्स या लीडरशिप बोल लें, ठीक हो गया, क्लियर यहां तक? अच्छा, 3 तरह की ही स्किल्स चाहिए होती हैं, मेन जो स्किल्स होती हैं वो भी 3 तरह की होती हैं इन लीडरशिप, इन मैनेजरियल लेवल पे 3 तरह की ही स्किल्स चाहिए होती हैं। एक को बोलते हैं टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। एक होती हैं ह्यूमन स्किल्स या पीपल स्किल्स कह लें, ठीक है, क्लियर। और तीसरी चीज होती है कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स कौन सी होती हैं? कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होती हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड होती हैं, जो आइडिया जनरेशन से रिलेटेड होती हैं, जो इनोवेशन से रिलेटेड होती हैं, जो स्ट्रेटेजिक जो है वो लेवल की थिंकिंग होती है, स्ट्रेटेजीज डेवलप करना, ये कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होती हैं। पीपल स्किल्स कौन सी होती हैं? सही है, कौन सी स्किल्स? इनमें से मैनेजर के पास कौन सी स्किल हो?
हाँ, ह्यूमन स्किल, वो तो ठीक है। ह्यूमन स्किल्स कौन सी स्किल्स होती हैं? मैं एक्चुअली यस, हाउ टू मैनेज ह्यूमंस, ठीक है, लोगों को कैसे लेकर के चलना है, जिसमें क्या होता है कि लिसनिंग स्किल हो सकती है, जिसमें क्या हो सकता है टीम बिल्डिंग स्किल्स हो सकती है, जिसमें क्या हो सकता है कम्युनिकेशन, पॉजिटिव कम्युनिकेशन हो सकता है, मोटिवेट करने की स्किल हो सकती है। लोग वो स्किल जो लोगों को इकट्ठा करे, उनको एक मकसद के लिए काम करने के लिए ड्राइव क्रिएट कर सके। एक बंदा जो लोगों से इकट्ठा करके काम करवा सकता है पॉजिटिव तरीके से, वो कौन सी स्किल्स होती हैं? वो पीपल स्किल्स होती हैं, ठीक है, वो ह्यूमन स्किल्स या पीपल स्किल्स हैं, ठीक है। और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स कि आप स्ट्रेटजीज बनाएं, प्लानिंग बनाएं, आइडियाज जनरेट करें, इनोवेशन क्रिएट करें, ऑर्गेनाइजेशन को एक ड्राइव दें, ठीक है, गोल्स बनाएं, ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हैं। और टेक्निकल स्किल्स कौन सी होती हैं? यस, कि वो जो भी बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस की हार्ड कोर स्किल्स क्या है? आईटी का पता है? नहीं पता, बिल्कुल ही नहीं पता जी। फाइनेंस का कंसल्टेंसी कर रहे हैं, फाइनेंसिंग का बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, ठीक है। इसी तरह से अगर फैब्रिक का काम, मैं अगर सेफायर की बात करता हूं तो फैब्रिक का बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, ठीक है, फैब्रिक के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता होना या करना, बिल्कुल करना आना, उसको मैं किसी तरह से कन्वर्ट नहीं कर पा रहा कि जी सेल ना करना आना मुझे, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को सेल ना करना आना, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हार्ड कोर टेक्निकल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हो, कम्युनिकेशन वाला पार्ट ना हो, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है, नॉलेज होगा तो मैं किसी को आगे कुछ बता सकूंगा, ठीक है। टेक्निकल स्किल्स ना होना, ठीक है, क्लियर, सही है। अब आपको पता है कि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने बताया जब कि इनमें से हर लेवल पे कौन सी स्किल कितने % चाहिए होती है, कोई गैस है? चले पहले चलते हैं, सॉरी पहले चलते हैं एक एक करके। फर्स्ट टाइम मैनेजर्स के लिए देखते हैं कि कितने % स्किल्स जो हैं वो टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए फर्स्ट टाइम मैनेजर्स के लिए। अच्छा, टेक्निकल स्किल्स जो हैं फर्स्ट टाइम मैनेजर्स के लिए उन्होंने कहा कि जी 40%, सॉरी 55% टेक्निकल स्किल्स चाहिए होती हैं, 55% स्किल्स टेक्निकल स्किल्स चाहिए, ठीक है। टेक्निकल स्किल्स कौन से? फर्स्ट टाइम मैनेजर्स के लिए, ठीक है। इसी तरह से जो ह्यूमन स्किल्स हैं फर्स्ट टाइम मैनेजर्स के लिए वो कितनी चाहिए? वो 25। अच्छा जी, अब आते हैं जी लास्ट हमारा जो है वो, मैं आपको बहुत सिंपल सा एक जो है वो एक छोटा सा टूल दूंगा, कोई हार्ड कोर ज्यादा कोई टूल नहीं है, छोटा सा स्मॉल सा एक टूल दूंगा, उसकी बेस पे अगर आप कुछ स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं तो वो हो सकती हैं, ठीक है, वो कोई भी स्किल हो सकती है, ठीक है। सारी स्किल्स को इंप्लीमेंट करने का एक सिंपल सा नॉलेज दूंगा और सिंपल सा एक टूल दूंगा। लेकिन मसला ये होता है कि जो सारी चीजें सिंपल जो होती हैं ना, करनी आसान नहीं होती, होती बहुत सिंपल है लेकिन करनी बहुत मुश्किल होती है। 1 एप्पल इन अ डे, 1 एप्पल इन अ डे कितना मुश्किल काम है, लेकिन नहीं होता, ठीक है। एक्सरसाइज, डेली मॉर्निंग वॉक करना, पता है आसान काम है सिंपल है लेकिन आसान नहीं है ना, ऐसे ही है, सिंपल है आसान नहीं है। आसान जब आपने बनाना है तो उसको जबरदस्ती आसान बनाना पड़ना है, ठीक है। वो कहते हैं ना कोई अच्छी चीज आसानी से नहीं मिलती, तो कोई अच्छी चीज आसानी से नहीं मिलती, ठीक है। कुछ भी डेवलप करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक चीज की कॉस्ट होती है, हर एक चीज की कॉस्ट होती है, ठीक है।
कॉस्ट का मतलब ये नहीं है पैसे हैं, कॉस्ट का मतलब एनर्जी हो सकता है, आपकी थिंकिंग हो सकता है, आप कुछ भी मतलब एफर्ट्स हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वो कॉस्ट हो सकती है। ठीक है जी, ओके। तो अब जो मैं आपको बताने लगा हूं, आप मुझे पहले तो ये बताएं कि मैं पहले ये देखूं एवरेज एज क्या है यहां पे बैठी। अच्छा, मुझे मेल बता दें कि उनकी कोई बताना चाह रहे हैं तो बता दें कि कितनी एज क्या है। कोई मेल बताना चाहेगा कि कितनी एज है? 22, 20, कौन कह रहा है 17 साल? अच्छा ठीक है, अच्छा 21, 22, ठीक है जी 21। अच्छा, हम अगर इसी एज का, अगर फीमेल्स को ज्यादा बुरा ना लगे तो हम इसी एज का एक साल कम ले लें उनके लिए यहां पे। सही है, 19 पूरा कर लें। ठीक है जी, 19, सारी फीमेल्स 19 इयर्स की हैं। अच्छा ओके, सो ये आपको पता है, ये जो एज है, ये एज अभी हैबिट्स डेवलप करने के लिए, स्किल्स डेवलप करने के लिए एक आइडियल एज है। ये आइडियल एज है। जैसे जैसे आपके टाइम गुजरता रहेगा, आपकी हैबिट्स इनग्रेव होती रहेंगी आपके माइंड में और आपके एक्ट्स में। आपकी बॉडी उस तरह से अप्रोच करना शुरू कर देगी और वो स्किल्स बनना शुरू हो जाती हैं और वो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाती हैं। ठीक है, फिर आपको पता है सीखने से ज्यादा मुश्किल काम क्या होता है? अनलर्न करना, भुलाना, अनलर्न करना। उनसे अनलर्न का पता है क्या है? लर्न करने से मुश्किल काम है अनलर्न करना। जो आपकी हैबिट्स बन गई उसको दोबारा निकालना, धोना, वो बहुत मुश्किल काम है। तो आपकी जो एज है ये एक आइडियल एज है। अभी आपकी हैबिट्स डेवलप होनी है बहुत सारी, आपकी स्किल्स डेवलप होनी है बहुत सारी। तो अगर अभी से आपने कुछ करना शुरू कर दिया सही डायरेक्शन में, तो मतलब अभी आपके पास बहुत टाइम पड़ा है, बहुत टाइम पड़ा हुआ है। सबसे पहला काम आपने एक काम करना है, जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप जो आपने जिंदगी का कोई गोल बनाया है या जो भी गोल बना रहे हैं, अपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल बनाए, उस गोल के लिए आपको जो स्किल्स चाहिए ना, उसकी एक लिस्ट बनाएं। पहला काम क्या है? पहला स्टेप क्या है? गोल बनाना। ठीक है, पहला काम है अपना लाइफ का, कोई भी मतलब गोल बना लें। सबसे पहले गोल बनाना है अपना। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी है, वो आपने टॉप करना है, वो आपने किसी स्पोर्ट्स में टॉप करना है, या आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में टॉप करना है, या जो भी चीजें हैं। ठीक है, आपका अपना पर्सनल हॉबी हो सकती है कोई। ठीक है, कोई भी गोल। उस गोल के लिए पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप, रिक्वायर्ड स्किल सेट। कौन सी स्किल्स उसके लिए आपको चाहिए? दूसरी चीज कौन सी? वो सारी लिस्ट बनाएं, सॉफ्ट स्किल्स की भी हार्ड स्किल्स की भी, दोनों लिस्ट बनाएं, दोनों लिस्ट बनाएं। ठीक है, क्लियर? तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम क्या करना है? यही तो मुश्किल काम है। उसमें से तीसरा स्टेप आपने करना है कि सेलेक्ट करनी है वन स्किल इन अ ईयर। बस 30 स्किल्स बनती हैं, 40 स्किल्स बनती हैं, 10 स्किल्स बनती हैं, 20 स्किल्स बनती हैं, सबको अभी भूल जाएं। उसमें से सबसे पहले एक स्किल, कोई भी एक स्किल, कोई भी एक स्किल 1 साल के लिए पकड़ लें, छोड़ दें बाकी सारी की सारी स्किल्स को। ठीक है, एक स्किल 1 साल में आपने अपने अंदर डेवलप करनी है। आसान है?
नहीं आसान, नहीं आसान, कैसी बातें कर रहे हैं, आसान नहीं है, सिंपल है लेकिन आसान नहीं है, आसान नहीं है। ठीक है, एक स्किल, सिर्फ एक स्किल पकड़े, उसको क्या करना है, उसको लिव करना है, उसको जीना है आपने। हर अपने काम में, हर आपके दिन का काम उसकी डायरेक्शन में जा रहा हो। ठीक है, वो स्किल डेवलप, हर काम करते हुए ये सोचें कि क्या ये काम मेरा इस स्किल को डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा। सोचा जा सकता है, हर एक काम, सुबह उठना क्या मेरा ये काम स्किल को डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा। स्कूल जाना, स्कूल नहीं सॉरी यूनिवर्सिटी आना, ठीक है, इतनी मुश्किल से स्कूल छोड़ा आपने, फिर स्कूल में, ठीक है, यूनिवर्सिटी में आना, क्या आपको जिस तरह से आप आ रहे हैं क्या इससे स्किल डेवलप हो रही है नहीं। यूनिवर्सिटी में किस तरह से बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कौन से दोस्त हैं, क्या है, क्या काम कर रहे हैं वहां पे, क्या एक्टिविटीज मिली हैं, ये किस तरह से उस स्किल के साथ अलाइन हो रही हैं या किस तरह से वो स्किल डेवलप हो रही है। क्लियर? ठीक है, ये काम करना है। आप यकीन करें कि अगर आप आज से, इस साल से एक एक स्किल, सिर्फ एक स्किल बनानी है, सिर्फ एक साल में, पूरे एक साल में एक स्किल बना लेंगे, तो जब आप सोच रहे हैं कि अगर आप ये इंप्लीमेंट कर पाते हैं, ये सिंपल है, आसान नहीं है, अगर ये आप इंप्लीमेंट कर पाते हैं तो हमारी एज में आके, मतलब आपके पास इतनी स्किल्स होंगी और इतनी कॉम्पिटेंसीज, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेंसीज होंगी कि आपके लिए आपकी जिंदगी के गोल्स को अचीव करना बहुत आसान होगा। सिर्फ एक स्किल लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी भाई, ये भी पकड़ लूं, ये भी पकड़ लूं, ये भी पकड़ लूं, नहीं, ऐसे नहीं करना, सिर्फ एक स्किल, लेकिन सोच समझ के लेनी है। लेकिन जब वो स्किल डेवलप कर रहे होंगे ना, आसान नहीं है, सिंपल है, आसान नहीं है। एक एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, एक, मैं पता नहीं, वो एक शॉर्ट स्टोरी सी पढ़ रहा था, एक लड़का जाता है, कहता है मैंने जी जरा टैटू बनवाना है अपने उस पर, शेर बनवाना है, पूरा ऐसे करके लाइन बनवाना है, ऐसे कर रहा हो तो लाइन बनाना है, वो पिक्चर देता है उसके बाद जो है वो जाता है उसके पास, टैटू बनवाना शुरू करता है, कहता है कि जी बना दो, अब वो पसंद आ गई जी, ये बनाना शुरू, वो बनाता है भाई, मतलब पीछे पेन हो रहा है यार, मतलब पेन हो रहा है, थोड़ी देर तो वो देखता, फिर कहता यार क्या बना रहे हो, कहता सर अभी तो मैं टेल बना रहा हूं उसकी। यार तुम ऐसा करो, तुम टेल रहने दो, तुम बाकी लाइन बनाना शुरू कर दो। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर वो बनाना शुरू करता, तो फिर वो पूछता कि, फिर उसे पेन होती यार क्या, फिर पूछता कि अभी यार क्या बना रहे हो, कहता अभी जो है वो उसकी जो है वो लेग्स बना रहा हूं। कहता यार तुम एक काम करो, ये लेग्स छोड़ दो, बाकी लाइन बना दो। कहता यार मतलब, कहता चलें ठीक है, आपने पैसे दिए, आपने बनवाना है, मर्जी, ठीक है। फिर वो बनाना शुरू करता, कहता फिर थोड़ी देर, यार क्या बना रहे हो, कहता यार मैं अब सर उसका पूरा धड़ बना रहा हूं, वो कहता यार तुम ऐसा करो, तुम इसका धड़ छोड़ दो, सर बना दो। कहता ए पे सारिया चीजा, एक कितना ना शेर है, ना पैर ने ओदे, ना दुम है, ना पेट है, कुछ भी नहीं है, कौन सा शेर है ठीक है। तो जब कोई हैबिट डेवलप करनी होती है ठीक है, तो जब आपने डेली कुछ करना है तो ऐसे ही पेन एक होना है, ठीक है, ऐसे ही पेन होना है। कुछ भी बनाने के लिए कुछ मतलब आपको उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। क्लियर? ठीक है जी। तो ये बेसिकली इंप्लीमेंट करने का एक तरीका। एक चीज आपको असाइनमेंट के तौर पे देके जाता हूं, आपने खुद स्टडी करनी है कि हैबिट्स किस तरह से डेवलप होती हैं या स्किल्स किस तरह से डेवलप होती हैं। लिख लें कहीं पे कि स्किल्स किस तरह से डेवलप होती हैं, उसका मॉडल आपने खुद पढ़ना है। अभी टाइम नहीं है जिसकी वजह से मैं अब आपको बता नहीं पा रहा, लेकिन आपने खुद पढ़ना है, उसको समझना है कि क्या है। एक है मॉडल अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंसी से लेके अनकॉन्शियस कंपिटेंसी वाला है। मैं यहां पे लिख भी रहा हूं,
ये एक पूरा एक ड्राइव है, ये पूरा एक ट्रेवल है जो अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंसी से स्टार्ट होके जाएगा अनकॉन्शियस बट कंपिटेंस। ठीक है, अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस से स्टार्ट होगा, यानी कि आपके कॉन्शियस में भी नहीं है और आपकी सलाहियत में भी नहीं है। वो ट्रेवल वहां से स्टार्ट होगा, ये किस तरह से बनाया जाता है और कहां पे खत्म होगा, आपके अनकॉन्शियस में होगा, आपके माइंड में नहीं है, लेकिन वो आपकी सलाहियत का हिस्सा बन गया है। उस तरह से गाड़ी किस किस को चलानी आती है, बाइक किस किस को चलानी आती है, जरा दोनों हाथ कर लें, किसी को दोनों में से कुछ भी चलाना आता है। ठीक है, ओके। जिस तरह से आपने सबसे पहले जब गाड़ी सीखी थी या बाइक सीखी थी या साइकिल सीखा था, उस टाइम आपको क्या करना पड़ता था, सोचना पड़ता था कि क्लच कहां है, पहले तो इंफॉर्मेशन ली, क्लच ये है, ब्रेक ये है, ये गियर इस टाइम लगाते हैं, ये नॉलेज लिया, कॉन्शियस में लाए, फिर उसको इंप्लीमेंट करना शुरू किया। ठीक है, फिर दोनों चीजें करना शुरू की, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपने प्रैक्टिस में बनाया, तो अब कितने लोग सोचते हैं कि ये क्लच है, मैं क्लच, अब मैंने क्लच प्रेस करना है, अब मैंने गियर लगाना है, अब मैंने ब्रेक लगानी है, कितने लोग सोच के अब करते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाता है ना। ये स्किल डेवलप हुई है। ठीक है, ये पूरा ट्रैवल आपने ये सोच, ये इस पे एक्सप्लोर करना है आपने, आपकी एक असाइनमेंट। ठीक है, तो ये आपने बेसिकली करना है। क्लियर है? आसान है? सिंपल है? सिंपल है, आसान नहीं है। ठीक है, ओके। सो अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों का यहां तक, हमारा तीसरा एजेंडा भी पूरा हो गया है? लेकिन मसला यह है, लोग चाहते हैं कि हमें कोई गोली मिले, मेडिसिन मिले, हम आज खाएं और आज से ऐसे हो जाएं, कोई फैसिलिटेटर, कोई ट्रेनर, कोई कोच, कोई टीचर आके ऐसा कुछ कर दे कि हम आज से ये करें और मैजिक हो जाए। ऐसा इस दुनिया में तो नहीं होगा। जब हम ऊपर जाएंगे ना, तो हमारी ख्वाहिशात कहते हैं कि सारी पूरी हो जाएंगी, तो वहां पे जाके शायद ऐसा हो जाए कि हम सोचें और वो हो जाए। लेकिन इस दुनिया में तो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस सिंपल जरूर हो सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, कमिटेड होना पड़ेगा। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन? क्लियर है? पक्की बात है? तो आप कमिटेड हैं कुछ अपनी हैबिट्स डेवलप करने, कुछ स्किल्स डेवलप करने के लिए? यस? इधर वालों के लिए? इधर वाले? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अच्छा, चले जी, गुड जी, थैंक यू वेरी मच जी, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का मैंने टाइम लिया, यहां पे बुलाया और आप सब लोगों को इतनी देर बिठाई रखा। होप, उम्मीद करता हूं कि जी एक भी चीज अगर कोई आपके लिए काम की हो, जो लर्न आप अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकें और आपके लिए कोई फायदा हो, तो मेरा जो है वो सक्सेशन होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, आपका सब लोगों का शुक्रिया। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और ऐसे एनर्जेटिक और यंग जनरेशन के साथ जो है वो हमें जो है वो सेशन करने का मौका दिया। आप लोगों के साथ बाकी भी बहुत मजा आया।